Good morning, everyone. Let's continue with another topic. And as so far, we discussed about some features of Java, and these are platform independence, internet programming, and object-oriented programming. Let's continue with the other features of Java, which are like write once, run many. Okay. The Java program written once can be execute many due to the platform independence. As we already discussed about the platform independence, तो platform independence की वजह से हमारे programs को हम एक बार लिखकर कितने बार भी execute करा सकते हैं Java में. तो this is again a very important and popular feature of Java. ठीक. Again, next one is dynamicness. What is dynamic? Java classes can be loaded dynamically, which allow dynamic development of Java. Distributed using Java, we can create distributed programs, okay, like client server based programs. Robust and secure. Java is highly reliable because of the following reasons: the strongly typed language, it's the explicit method definition, lack of explicit pointers, good exception handling, and it is also interpreted language and a multi-threaded language. All right, so these are the features of Java. Let's continue with some other thing with Java. Okay, now let's introduce the Java programming, how we can do the programming in Java. Okay, what the elements we require, how we can do all these things. Okay, let's start with the Java introduction. As we already discussed the features of Java, तो अभी तक हम ये समझ ही चुके हैं कि Java बेसिकली है क्या. तो फीचर्स से बहुत कुछ हमें समझ में आ जाता है किसी लैंग्वेज के बारे में. तो अगर हम यहाँ पे ब्रीफ करें तो Java is a third generation object oriented programming language. It provides the various feature for developing different type of programs and various software. And this provides easy and expert way to solve computational problems and developing internet programs. It's a platform independent and portable language. Java is a high level language, right? तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है. हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, ये दो एक बहुत कॉमन वर्ड्स हैं लैंग्वेज वर्ड में. थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं. तो हाई लेवल क्या है और लो लेवल क्या है. तो हाई लेवल लैंग्वेज आर द लैंग्वेज which actually not deals with the hardware directly, rather it deals with a middle layer called the environment or the operating system. Okay, instead of that, if we are talking about the low level, which are assembly language and the machine language itself, which deals with the machine directly, the platform directly, right? Okay. History of Java. James Gosling is known as the father of Java. We all know that. James Gosling, Patrick Norton, Chris Ward, Ad Frank, and Mike Sheridan at Sun Microsystem Incorporation in 1991 imagine to develop a new language which was introduced as a name, as its primary name, you can say OAC, which is later renamed as Java in 1995. So if we are talking about the brief history, so in 1990, James Gosling and the team undertaking a task to develop a new language, okay, which is finally they introduced the OEC named language in 1991. And the team demonstrated the use of OEC in device programming in 1992. तो अभी तक OEC को जानते नहीं थे लोग, तो OEC को पहचान कराई वर्ड के साथ में इस टीम ने, जेम्स गोसलिंग की टीम ने, जो कि डिवाइस प्रोग्रामिंग करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल थी. ठीक है, जिसको कि OEC नाम दिया गया था. 1993 में इसमें एप्लेट एड ऑन हुआ जिससे कि हम इंटरनेट प्रोग्रामिंग कर सकते थे. तो दैट वाज द फर्स्ट
you can say the programming capabilities add on to the internet or the HTML code, because HTML does not provide any programming capabilities. It is only a rendering language जो कि सिर्फ चीजों को दिखा सकती है अलग अलग तरीके से, उसमें कोई प्रोग्रामिंग हम नहीं कर सकते, कोई प्रोसेसिंग हम नहीं कर सकते। तो एप्लेट जो है वो पहला कोड बना जो कि HTML में प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज को हम जिससे एड ऑन कर सके। 1994 में हॉट जावा नाम का एक ब्राउजर आया जो कि एप्लेट्स के लिए हेल्पफुल था, एप्लेट्स को रन कराने के लिए। 1995 में जावा नाम दिया गया ओएक को, ठीक है, जो कि आज पॉपुलर है जिस नाम से ये लैंग्वेज जावा, राइट। 1996 में जावा अपने आप को स्टैब्लिश कर चुकी थी इस तरीके से कि उसकी एक पहचान हो गई थी कि वो एक इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर वो अपने आप को स्टैब्लिश कर चुकी थी। एंड फ्रॉम 1997 ऑनवर्ड्स टिल डेट बहुत सारे प्रोग्रामिंग चेंजेस और बहुत सारे फीचर्स इंट्रोड्यूस करके, इनकॉर्पोरेट करके ऑलमोस्ट हर साल एक नया वर्जन हमें जावा का देखने को मिलता है जो कि जावा को और ज्यादा पावरफुल बनाता जा रहा है। नाउ ट्रांसलेटर, जैसे कि अभी हमने बात की थी हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज, एंड जावा इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। एंड हाई लेवल लैंग्वेज सीधा एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, क्योंकि एग्जीक्यूटेबल जो है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज होती है, मशीन को ही सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आएगी। तो इसका मतलब जो भी हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं उसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ट्रांसलेट करना होगा। लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो उसके लिए हमें ट्रांसलेटर चाहिए होगा। तो ट्रांसलेटर इज अ प्रोग्राम यूज्ड टू ट्रांसलेट द सोर्स कोड रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू द machine understandable executable machine language code, right? So we have two type of translator mostly, like compiler is a translator who translates the source code at once into a low level language। ये एक बार में पूरा का पूरा सोर्स कोड ट्रांसलेट कर देता है और ट्रांसलेटेड सोर्स कोड हमें एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में अवेलेबल कराता है। उस ट्रांसलेटेड सोर्स कोड को हम एक बार ट्रांसलेट करने के बाद कितने बार भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। Okay, and another translator is interpreter. This is the program that translates the source code to machine language or the low level language code again, but in step by step or the line by line format। तो इंटरप्रेटर सोर्स कोड में से एक लाइन लेगा, एक स्टेप उठाएगा, एक स्टेटमेंट उठाएगा, उसको ट्रांसलेट करेगा और एग्जीक्यूट करने के लिए देगा, ठीक। तो यहाँ पे इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट कराता है, जबकि कंपाइलर पूरे सोर्स कोड को एक साथ कंपाइल करता है, मतलब ट्रांसलेट कर देता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए दे देता है। तो जो मेजर डिफरेंस है यहाँ पर वो यही है कि कंपाइलर पूरा कोड एक साथ ट्रांसलेट कर देता है और ट्रांसलेटेड कोड हमें अवेलेबल होता है जिसको कि हम फर्दर एग्जीक्यूशन में यूज कर सकते हैं। एक बार कंपाइलर से ट्रांसलेट करा दिया आपने कोड, तो ट्रांसलेटेड कोड आगे के लिए अवेलेबल रहेगा हमेशा के लिए, और आप उसको अगर कोई चेंज किए बिना एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो फिर से ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा, यानी कि ट्रांसलेट वंस एंड रन मैनी हम कर सकते हैं कंपाइलर के केस में। बल्कि जबकि इंटरप्रेटर के केस में इंटरप्रेटर हर बार सोर्स कोड में से एक स्टेटमेंट उठाएगा, एक लाइन उठाएगा, उसको ट्रांसलेट करेगा और एग्जीक्यूट करने के लिए देगा, यानी कि हर बार हमें सोर्स कोड चाहिए होगा और ट्रांसलेट भी हर बार होगा, हर प्रोसेस में हर बार ट्रांसलेट होगा, हर एग्जीक्यूशन के लिए। तो यहाँ पे हम एग्जीक्यूटेबल कोड को स्टोर नहीं करते हैं, इंटरप्रेटर स्टोर नहीं करता है। बट ऐसा नहीं कि इंटरप्रेटर एक बेकार चीज है, इंटरप्रेटर के भी अपने एडवांटेज हैं। जैसे कि हमने देखा कि कंपाइलर ट्रांसलेट करके हमें ट्रांसलेटेड कोड अवेलेबल करा देता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन में उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। तो इंटरप्रेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन है, क्योंकि इंटरप्रेटर हर बार सोर्स कोड से एक स्टेटमेंट उठा रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है और फिर उसे एग्जीक्यूट करने के लिए दे रहा है। तो एग्जीक्यूशन में उसका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन है, और क्योंकि इंटरप्रेटर एक स्पेसिफिक टाइप के कोड को ही ट्रांसलेट करेगा और आगे फॉरवर्ड करेगा, तो यहाँ पर वायरस के चांसेस कम हो जाते हैं। जबकि कंपाइलर के केस में एक जनरल पर्पस एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट हो गया जिसमें कि इन्फेक्शन, वायरस इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं यहाँ पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर के। तो अगर हम बात करें नोट
यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, इसलिए जावा अब दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करता है जिसको कहा जाता है JITC, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जबकि जावा इनिशियली इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज के तौर पे इंट्रोड्यूस की गई थी। Okay, now let's understand the Java compilation process. What is the Java compilation process? First of all, what we have the source code. Source code जो कि हम English like language में Java का कोड हम लिखेंगे, like class Java, अगर थोड़ा हमें आइडिया है तो क्लास जो भी हमने कोड, मतलब जो भी हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, बेसिकली कोड जो टाइप करते हैं वो हमारा सोर्स कोड कहलाएगा। ठीक है, इस सोर्स कोड को फिर हम कंपाइलर से, जावा कंपाइलर से कंपाइल कराएंगे, जो कि ट्रांसलेट करेगा इसे एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड में, जिसे हम बाइट कोड कहते हैं, इंटरमीडिएट कोड या बाइट कोड। ठीक है, अभी ये बाइट कोड सीधा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ये बाइट कोड फर्दर एक एनवायरनमेंट को दिया जाएगा जिसे हम कह रहे हैं JVM, एंड JVM JITC की हेल्प से इसको फर्दर एग्जीक्यूटेबल बनाएगा, जो कि फाइनली मशीन या लो लेवल लैंग्वेज कोड होगा जो कि एग्जीक्यूट होगा मशीन के द्वारा। राइट, दिस इज द compilation process of your Java code. Fine. So let's understand these terms. Source code, the set of instructions and statement written by the computer programmer using a programming language like Java to find a solution of a problem is known as the source code. Bytecode, the platform independent code in which the Java compiler converts the Java's source code into the platform independent code known as the bytecode, which is easily understood and executed by the JVM JITC. Now, what is JVM? JVM stands for Java Virtual Machine, which works as a Java runtime environment to execute the Java's bytecode with the help of JITC, just in time compiler। जैसे कि हम पीछे अभी बात कर रहे थे कि जो भी हाई लेवल लैंग्वेज कोड होते हैं, जो भी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, वो सीधा हार्डवेयर के साथ डील नहीं करती, सीधा मशीन के साथ डील नहीं करती, सीधा मशीन पे एग्जीक्यूट नहीं होती, बल्कि बीच में एक एनवायरनमेंट होता है जिसके थ्रू वो एग्जीक्यूट होता है। तो ये बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ये एनवायरनमेंट है जिसके थ्रू आपका जावा कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर आपके पास किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में JVM अगर अवेलेबल है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, आपका हार्डवेयर क्या है। आपके पास अगर JVM अवेलेबल है तो फिर आपका कोई भी जावा कोड किसी भी मशीन पर एग्जीक्यूट हो सकता है। इन दैट वे जावा बिकम द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। Machine code finally is a low level programming code which is understandable by the machine to finally execute। तो जो फाइनल एग्जीक्यूशन होगा वो होगा मशीन से के द्वारा, और जो कि मशीन लैंग्वेज में होगा। तो जो भी हमारा कोड हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसे हमें पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यही कन्वर्टेड कोड जो ट्रांसलेट हुआ है वही है हमारा मशीन कोड। Okay, thank you for this session. We'll continue with some new topic in the another session, in the next session. Okay, thank you. Till then, आप ये सारी चीज़ों को समझिए, जानिए, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कीजिए। Thank you very much.